Hello, Yash. Hello, Hello, brother. and first of all, thanks for inviting me at your podcast. And we'll discuss so many things in this podcast. We are going to learn so much from you, from your knowledge. So let's begin with this extensive podcast. So Yes, first, my first question will be to you is what are the best platforms you can suggest to the beginners कि अगर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना है C++, पाइथन, जावा, कोई भी लैंग्वेज हो प्रोग्रामिंग रिलेटेड, सो आप क्या रेकमेंड करना चाहोगे उसके लिए? कौन से प्लेटफॉर्म्स या फिर कोर्सेस? Firstly, I'll say that beginners should start learning either C language or Python because these two are considered as beginner friendly. ओके. And रही बात सोर्सेस की, तो अगर आपको सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए, so you can look towards platforms like Simplilearn and Great Learning. They offer Okay. totally free courses, ओके. so you can have look towards it also. And if you also want, like Udemy also offers free courses sometimes whenever the discount sale is on. And अगर आपके लिए सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है, so for this there are tons of videos on YouTube on the channels like Geeks for Geeks, Coding Ninjas, ओके. and Kunal Kushwaha, Code with Harry. These are some of the big channels from which you can learn coding almost for free on YouTube. But here the thing is that you will not get any kind of certifications. आपको क्या लगता है कि सर्टिफिकेशंस मैटर करता है या फिर स्किल्स मैटर करता है? आपके ओपिनियंस क्या है? So if you just want to learn, like आपको सिर्फ लर्न करना है, आपको मतलब कहीं अप्लाई नहीं करना है, जैसे कि इंटर्नशिप्स, जॉब वगैरह प्रोफेशनल लेवल पर नहीं चाहिए. So for that purpose, you don't need any kind of certifications because for you the knowledge is important rather than the certificate. Okay. So for this purpose, I think that it's up to the person. If he wants to have certificates, then it's up to him. Great. As you are more into web development, HTML, right? So वेब डेवलपर होने के लिए अगर किसी को वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखना है, व्हाट आर दैट मैंडेटरी एस्पेक्ट्स? क्या वो चीजें होती है जो वेब डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है? क्या स्किल्स होनी चाहिए? और वेब डेवलपमेंट यानी क्या होता है बेसिकली, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. So web development comes under software development, and software development basically has app development and web development, and there are other much more things also. So web development में आता है कि वेबसाइट के बारे में सब कुछ, वेबसाइट डिजाइन करने के साथ साथ UI UX डिजाइन करना, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, बैकएंड देखना वेबसाइट का, अगर कुछ APIs वगैरह लग रहे हैं तो वो API डेवलपर वगैरह वो सब. और वेब डेवलपमेंट में बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, सॉरी पूरे डेवलपमेंट में तीन पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट. ओके. सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में पूरा डिजाइनिंग पार्ट आता है, जो कि HTML CSS और रिएक्ट जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करके जावास्क्रिप्ट के वेरियस फ्रेमवर्क्स. और बैक एंड डेवलपर सिर्फ बैक एंड देखता है, फंक्शनिंग वेबसाइट का, तो उसमें बहुत से लैंग्वेज आते हैं और PHP वगैरह सब कुछ. और फुल स्टैक डेवलपर उसको सब आता है, मतलब उसको UI भी डिजाइन करना आता है, उसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आता है, बैकएंड भी आता है और ऐप डेवलपमेंट भी आता है, डेटाबेसेस और MongoDB और MySQL वगैरह जैसे डेटाबेसेस भी यूज करना आता है. ओके. तो ये सब कुछ है, तो वो आपके ऊपर है कि आपको किस में इंटरेस्ट है. अगर आप डिजाइनिंग पार्ट में इंटरेस्टेड है तो आप UI UX डिजाइनर बन सकते हैं, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर. So for this purpose of UI UX designing, you will need to have knowledge about Figma, softwares like Figma and Adobe XD. And if you want to become a front-end developer, like only for designing purposes, then you have to have knowledge about HTML, CSS, and various JavaScript frameworks. Okay. And for a back-end developer, you will also need to have information about various same JavaScript frameworks, because at that time in back-end development, you will see the functioning of the website, which is very important. Okay. तो ये है. और स्किल्स का अगर आप पूछोगे तो स्किल्स यही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह, आपको और क्लाइंट से अच्छे से बात करना आना चाहिए अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो. ओके. तो यही है. वेब डेवलपमेंट सीखना है तो कहाँ से सीखे, मतलब बेसिक्स या फिर अंडरस्टैंड करना है वेब डेवलपमेंट क्या है, वो सारी चीजें?
तो वेब डेवलपमेंट के बहुत से कोर्सेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि सिंपली लर्न और ग्रेट लर्निंग, ये 2 फ्री कोर्सेस ऑफर करते हैं वेब डेवलपमेंट के। ओके तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज भी है सिंपली लर्न और ग्रेट लर्निंग के। और यूट्यूब पर भी बहुत से वीडियोस है वेब डेवलपमेंट के, जैसे कोड विद थेरी का है वेब डेवलपमेंट। और सीखना चाहते हैं बेसिक्स वगैरह, तो आप यही वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर। और थोड़े से प्रोजेक्ट्स खुद से भी बनाइए, डिजाइनिंग वगैरह करिए। और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है तो और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि Behance है, ड्रिबल है, इन पर आप ओके पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपना। और सीखने की रही बात, तो कोर्सेस बताया आपको यूट्यूब पर भी है, और अगर पेड कोर्सेस चाहते हो तो कोर्सेरा और एडेक्स है और स्किल शेयर। दीज हाँ आर वेरी हाँ गुड प्लेटफॉर्म्स इफ यू वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट पेड कोर्सेस के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज कोर्सेस लाइक कोई भी चीज के बारे में हो, जैसे कि आपने बोला फ्रीलांसिंग, ये जो एक रोल है जो कि इंडिया में फ्रॉम पास्ट 3 to 2 years बहुत ग्रो कर रहा है, राइट? चाहे वो सिंपल लोगो लोगो डिजाइनिंग वाला हो या ट्रांसक्रिप्शन हो या फिर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें। तो एज अ फ्रीलांसर, जैसे कि आप भी काम कर रहे हो, आपके हिसाब से आपके क्या रिकमेंडेशन है अगर आपको फ्रीलांसर बनना है, बिगिनर हो, कितना वक्त लगता है एक क्लाइंट मिलने के लिए? विच व्हाट आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आपको अच्छी तरीके से क्लाइंट मिल सकते हैं, और क्लाइंट से बात करने के लिए या फिर पहला अपना पोर्टफोलियो बनाने का तरीका, वो सारी स्ट्रेटेजीज, ये सारी चीजें, ये सारी स्किल्स कैसे सीखे, क्या होता है वो सारी चीजें? तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक पाथ चूज करना पड़ेगा कि यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, फ्रंट एंड और बैक एंड, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो। ओके तो सबसे पहले बेसिक सीखिए। सबसे पहले बेसिक सीखना चाहिए आपको यूट्यूब से, फ्री ओके में ही सीखिए। पेड कोर्सेज की तरफ बाद में जाइए थोड़ा। तो हम्म एक बार आपको बेसिक्स पता चली तो आपको एक आइडिया जाएगा कि ये क्या होता है, अगर हम्म आप एकदम ही बिगिनर हो तो। हम्म तो एक बार आपने कुछ बेसिक्स कंप्लीट कर लिए यूट्यूब से, तो उसके बाद आप एक पेड कोर्स की तरफ जा सकते हो, कोर्सेरा वगैरह से। ओके तो इन पेड कोर्सेज से आपको टोटली आइडिया जाएगा, वो पूरा स्क्रैच से सिखाएंगे आपको कि ओ एक वेबसाइट को HTML से स्ट्रक्चर करने के बाद, CSS से डिजाइन करने के बाद कैसे पूरी वर्किंग रहती है। ओके तो आप आपने एक बार ये पूरा कोर्स कर लिया, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा वेबसाइट्स बनाने में लग जाइए। So the main thing here in web development is that how much more do you practice, how much more do you design, rather than theoretical part. It is more about practical part. प्रैक्टिकल थिंग How can you ओके implement those theoretical concepts? Yes, how can you implement those theoretical concepts practically? So उसके बाद आप सबसे पहले आप एक टोटल वेब डेवलपर बन गए, आपने वो कोर्स किया। तो उसके बाद आपको कुछ मॉक डिजाइन बनाने, कैनवा से, फिग्मा से, एडोब एक्सडी से। सो ये पूरा करने के बाद आपको, एक बार आपने पूरा ये सीख लिया, तो उसके बाद आपको खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम्म पोर्टफोलियो, आपको आपका काम पहले दिखाना है क्लाइंट को। फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू डू इज शो योर वर्क टू द क्लाइंट, देन ओनली क्लाइंट विल अंडरस्टैंड योर स्टाइल ऑफ वर्किंग। ओ लाइक आपको क्या क्या कितना आता है। तो अगर ओके आप दिखाओगे ही नहीं क्लाइंट को आपके पास वर्क, तो क्लाइंट को आइडिया नहीं आएगा कि आप क्या हम्म कर सकते हो उनके लिए, कितना अच्छा कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट सबसे पहले आप बना सकते हैं अपनी खुद की, उससे आपको एक्सपीरियंस और अच्छा आ जाएगा। हम्म तो वो है। और पोर्टफोलियो वेबसाइट के बाद आप, मेन टास्क आता है क्लाइंट्स ढूंढना। तो आप अगर जाएंगे freelancer.com, अपवर्क और फाइवर, इधर पहले से ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है। द एग्जैक्टली कंपटीशन ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स इज टोटली मच मोर, so it will be harder for a beginner to find clients here. So for this purpose, I'll recommend you to find clients on other platforms like LinkedIn. हम्म Like you can find clients on Instagram, from Twitter. फर्स्ट आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको लिंक्डइन पर आपकी खुद की प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है। हम्म और लिंक्डइन ने एक फीचर भी ऐड किया है सर्विसेज का। So in this services feature, you can add your services which you can provide to your client. ओके Like जो कुछ भी सर्विसेज है आपकी, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम्म SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, आपको ऐड करना है। उसके बाद क्लाइंट जब आपके वेबसाइट पर, सॉरी, जब आपके लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगा, तो वह सर्विसेज सेक्शन में जाएगा। तो उसके बाद वो आपको एक प्रपोजल भेज देगा। ओ तो मुझे क्या लगता है कि हम सोशल मीडिया से क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं, रेदर देन फाइंडिंग क्लाइंट्स ऑन दिस प्रीली बिल्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। बिकॉज हम्म पहले से इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लोग हम्म एक न्यू बिगिनर को चुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पहले से ही एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं। एग्जैक्टली तो इसलिए आप आपकी खुद की प्रोफाइल सोशल मीडिया के थ्रू बना सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन पर है, और हम्म बचा ट्विटर,
ट्विटर पर बना सकते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छा है आजकल। तो इससे आप फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं अच्छे से, मुझे लगता है। ग्रेट ग्रेट, मतलब ये वाला जो सेकंड वाला आपने जो जुगाड़ बताया ना, वो मैंने कभी नहीं सुना था, बस आपसे पहली बार सुन रहा हूँ। सो जो भी नए यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल पे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सो टेक नोट इट डाउन कि ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। ठीक है, 10 में से 5 या फिर 6 बार फेल होगा, लेकिन दूसरे या तीसरी बार तो एटलीस्ट सिलेक्ट हो जाओगे, एटलीस्ट एक क्लाइंट मिल जाए। देन अगर वही कंटिन्यूस रहता रहा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? और हाँ, मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ प्रोफाइल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको पहले फ्री में बहुत से जनों के लिए काम करना पड़ेगा। यू विल ओके। हैव टू वर्क फ्री फॉर पीपल, एंड द वर्क यू हैव टू अपलोड ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आपको ज्यादा से ज्यादा काम आपका इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करना है, सो दैट पीपल विल आइडेंटिफाई एंड पीपल विल जज यू अकॉर्डिंगली। क्योंकि ओके। अगर आप आपका काम दिखाओगे ही नहीं, अपलोड ही नहीं करोगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप कौन है? सिर्फ आप बताओगे आई एम अ वेब डेवलपर, लोग बोलेंगे अरे काम तो दिखाओ अपना। हाँ, सो एग्जैक्टली। दिस इज द। ओके ओके, तो वो अपने खुद का काम जो है वो अपने को सेव करके रखना है और दिखाना है यस अपने यस यस पोर्टफोलियो में। जैसे कि फिर वो यस क्लाइंट जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके तरफ, बिकॉज आपने बहुत सारा प्रैक्टिस और ट्रायल्स किए हैं इसके बेसिस पे, राइट? यस जैसे आपने लिंक्डइन के बारे में बात की, एज आई नो कि आपने अभी अभी लिंक्डइन और ट्विटर पे मोर देन 1000 फॉलोअर्स गेन करे हैं, राइट? तो आपकी स्ट्रैटेजी यस। क्या है उसके पीछे? आप किस तरह के कंटेंट वहां पे पोस्ट करते हो? आपने कहाँ से पता किया कि ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे नहीं हो सकता है? आप क्या सीक्रेट तो बताना सकते सबसे यस 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 तो सबसे पहले 10th होने के बाद 11th में मैंने वेब डेवलपमेंट चालू किया था। तब मैंने स्टार्टिंग में HTML लर्न करना शुरू शुरू किया और पाइथन भी लर्न करना शुरू किया। हैं? तो जैसे मुझे पाइथन पूरी आ गई, तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पर चैनल बना दिया। ओके। तो हुआ क्या कि 11th में ये सब करने के बाद 12th में मुझे पता चला कि सिर्फ यूट्यूब ही नहीं है जिस पर हम अपना काम दिखा सकते हैं, हम्म बाकी के भी प्लेटफॉर्म्स है। तो उस वक्त मैंने यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस देखना चालू किया लिंक्डइन के ऊपर। हम्म So I found that LinkedIn is also a very great platform to show our work. And the most important video which I saw regarding LinkedIn was of Ishan Sharma. हाँ, So if you don't know, Ishan Sharma is a great YouTuber. He made a एग्जैक्टली। video and also he published his own book, How to Crush It on LinkedIn. So I read that book of 90 pages. हम्म एंड उसके बाद मैंने लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना दी स्टार्टिंग में। और पहले मेरे प्रोफाइल पर सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर था और नाम हम्म एंड हेडलाइन, नथिंग मच फैंसी रिगार्डिंग दिस। ओके। एंड उसके बाद मैंने कुछ वेब डेवलपर्स की प्रोफाइल सर्च की लिंक्डइन पर। आई हम्म स्टार्टेड ऑब्जर्विंग देम आई ओके। स्टार्टेड ऑब्जर्विंग देम दैट व्हाट डिफरेंट दे आर डूइंग, हम्म दैट दे आर गेटिंग सम मोर फॉलोअर्स देन अदर्स। सो उसके बाद मैंने देखा कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपना काम, अपने अचीवमेंट्स और अपने गोल्स लिंक्डइन पर अपलोड करते हैं। हम्म तो उसके बाद मैंने, मतलब मैं हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। मैंने 2021 में 8 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था और उसमें से 3 जीते भी थे ओ, 2021 पिछले साल में। ग्रेट। तो मैंने वो अचीवमेंट्स वगैरह, हाँ मैंने एक दो अचीवमेंट्स पोस्ट किए हैं लिंक्डइन पर। तो अचीवमेंट पोस्ट किए और फिर उसके बाद कुछ अगर यूट्यूब वीडियो अच्छा मेरा चल गया तो वो मैं पोस्ट करता था कि लोगों को, लिंक्डइन के ऑडियंस को यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ओके। तो मैं लिंक्डइन पर भी वीडियोस पोस्ट करता था। और वैसे मैं और भी बहुत कुछ पोस्ट, जैसे मेरे शॉर्ट आर्टिकल्स भी आपको मिलेंगे अगर आप मेरे लिंक्डइन पर लिंक्डइन के प्रोफाइल पर जाओगे तो, विजिट करोगे तो उस पर मैंने आर्टिकल्स लिखा है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ग्रो होगा 2025 तक। और उसके बाद शार्क टैंक इंडिया, जो आप सबसे बड़ा हम्म शो चल रहा है इंडिया स्टार्टअप में, पर। तो एग्जैक्टली। वो, यस 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 सो आई जस्ट टोल्ड इन दैट आर्टिकल दैट हाउ Shark Tank India can change the mindset of Indian parents regarding startup and business. हम्म So regarding this thing, and more, I also uploaded an article regarding how big tech companies use machine learning हम्म for building their product. तो ये आर्टिकल, तो आपको इंफॉर्मेटिव पोस्ट तो करना ही पड़ेगा। उससे लोगों हम्म को, लोग देखेंगे आपके पोस्ट को, आपको लाइक्स मिलेंगे, एंगेजमेंट मिलेंगे, लोग आपके पोस्ट को रीशेयर करेंगे उनके प्रोफाइल पर। ओके। सो ये होने के बाद, जैसे कि सो आई स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। सो ऑन यूट्यूब आई आल्सो टोल्ड माय ऑडियंस टू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड चेक माय लिंक्डइन प्रोफाइल वंस। हम्म So from that also I got my LinkedIn profile, sorry, LinkedIn followers. फॉलोअर्स, ओके। तो ये एक था, यस। और आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपको ऑडियंस शिफ्ट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर ग्रो हो रहे हैं, जैसे कि
आपके इंस्टाग्राम पर समझो 50-60,000 फॉलोअर्स है, तो आपको उन 50-60,000 फॉलोअर्स को शिफ्ट भी करना पड़ेगा लिंक्डइन पर, हम्म तभी आपके लिंक्डइन पर भी उतने फॉलोअर्स बन पाएंगे। तो ये तो है कि आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, लोग क्यों फॉलो करें हम आपको, कुछ तो हम्म रीजन होगा ना आप में कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा कि आपको लोगों, जैसे देखिए आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपको फॉलो करने चाहिए, तो आपको भी कुछ तो देना पड़ेगा, जैसे कि लोगों के पोस्ट पर कमेंट करो, हम्म अगर कोई आपका इंस्पिरेशन वगैरह है लिंक्डइन पर तो। हम्म And you should also comment on others posts, like their posts, so that they'll identify you, yes, that this guy is following me or he's engaging with me. हम्म So yes, this thing made me gain followers on LinkedIn, and I was able to gain 1000 followers on LinkedIn. Okay, okay, great idea. Now my next question will be, what do you think about blockchain? What do you think about NFTs, जो अभी अभी बहुत पहले ही मार्केट में है, बट अभी जो है वो ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आपके हिसाब से ब्लॉकचेन क्या है, एनएफटी क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दीजिए, फिर आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या होगा इन सारी चीजों का। So I think NFT is a lot more trending nowadays. NFT basically means non-fungible token. हम्म So NFT basically एक डिजिटल आर्ट है जो आप हम्म सेल कर सकते हो। तो अगर आपको एनएफटीज वगैरह आजकल लोग बाय भी कर रहे हैं, खुद के एनएफटीज बना भी रहे हैं, मिलियंस डॉलर्स ऑफ रुपीस कमा भी रहे हैं एनएफटीज से। तो हम्म एनएफटीज बेसिकली एक फॉर्म है डिजिटल आर्ट का जो लोग सेल करते हैं डिजिटली, जैसे हम्म क्रिप्टो करेंसी सेल करते हैं। हम्म सो अगर आपको भी आपका खुद का एक एनएफटी क्रिएट करना है, कलेक्ट करना है, बाय सेल एनीथिंग, सो OpenSea.io is also a आयो very good platform where you can एग्जैक्टली collect. OpenSea.io, yes. So you can use this platform, and there are much more other brands also creating their own NFTs, such as Binance, हम्म and they are also selling those. So हाँ, ये कुछ था NFTs के बारे में। डिजिटल आर्ट का फॉर्म है जो आप सेल कर सकते हो, कलेक्ट भी कर सकते हो। तो ये है। और दूसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक राइट नाउ। Blockchain technology basically means that the technology performed in a type of blocks, like the data is not stored in a single piece. ओके It is stored in a much more form, and the forms are known as blocks. And the blocks are chained together in form a block in order to form a blockchain. ओके The cryptocurrencies work on the same blockchain technology. Cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and Shiba is also a new cryptocurrency. And these things and Dogecoin. So these all cryptocurrencies work on the same blockchain technology. So I think that yes, these topics are really gonna grow in India for in the past upcoming 5 to 6 years. Like now the web development and AI sector is growing. हम्म So yes, basically this finance sector will also grow a lot in India. एंड लोगों को पहले इतना ही पता था कि स्टॉक सेल करना, बाय करना, शेयर मार्केट, और फाइनेंस अब सिर्फ शेयर मार्केट तक नहीं रहा है, वो अब एनएफटीज में भी आ गया है, वो अब क्रिप्टो करेंसी में भी क्रिप्टो आ गया है, करेंसी वो वेब एग्जैक्टली 3 में भी आ गया है। एग्जैक्टली। Yes, तो हाँ, सेक्टर ग्रो हो सकता है फाइनेंस का इंडिया में अगले 5-6 साल में। बट स्टिल यू हैव सो फार नॉलेज देन मी, लाइक मुझे ये जो सारी चीजें थी वो उतना नहीं पता था। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एआई एंड मशीन लर्निंग? क्या होगा आगे का फ्यूचर? जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिक कार्स, स्कूटर्स, वो सारी चीजें आ टेस्ला रही है, बहुत वगैरह। टेस्ला आ रही है। इंडिया में भी टेस्ला लॉन्च हो चुकी है, कुछ लोगों ने बाय की है। तो ऑटोमेटिक भी कार चलती है, राइट, विद द हेल्प ऑफ एआई। तो वो आगे चल के बेनिफिशियर होने वाली है ह्यूमन बींग्स को, या फिर कभी कभार एक्सीडेंटली कुछ हो सकता है? मतलब कितना हम भरोसा रख सकते हैं? आपके अकॉर्डिंग क्या प्रेडिक्शंस है उस रिलेटेड? Okay, so AI, artificial intelligence is a really great, it can really help humans. Like देखिए आप एआई जैसे कि बहुत से चीजों में, जैसे कि गूगल भी एआई यूज करता है वॉइस सर्च के लिए। हाँ और वॉइस सर्च मतलब आप जो कुछ भी कमांड्स बोलेंगे गूगल वो सर्च करेगा ऑटोमेटिकली वेब पर, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा बाय अमेजोन, और कॉर्टाना, सीरी, ये सब गूगल असिस्टेंट से ये वॉइस कमांड पर भी चलते हैं। हम्म आप कुछ बोलोगे ये डायरेक्टली वेब पर सर्च कर देंगे अगर इनको पता नहीं है। ओके सो दिस थिंग वॉइस कमांड्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड रही बात अगली गूगल ट्रांसलेट वगैरह, वो भी बहुत से यूज होते हैं। हम्म लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हम्म स्टेटमेंट ट्रांसलेशन। हम्म। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एआई एंड मशीन लर्निंग का है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। Amazon, हाँ Netflix, Flipkart,
ये सारी कंपनीज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का एप्लीकेशन यूज करती है, एआई एंड एमएल का। सो इससे क्या होता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वो सॉफ्टवेयर है जो वो कंपनी यूज करती है, वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर यूजर्स को ऑब्जर्व करता है कि इस यूजर का इंटरेस्ट किस में है, ये क्या सबसे ज्यादा सर्च करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि YouTube पर जो भी आप सर्च करते हैं वही रिलेटेड वीडियोस आपको होम पेज पर दिखेंगी, क्योंकि उस एआई सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि अच्छा ये यूजर ये सर्च करता है, इसका इंटरेस्ट इसमें है, तो हम इसको इस यही टॉपिक दिखाएंगे कि ये हमारे प्लेटफॉर्म पर टिकेगा, ज्यादा से ज्यादा इसको वही चीज दिखाएंगे। So this is the thing which AI and ML works mainly upon, and yes, AI and ML sector is really gonna grow. तो मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है कि AI और ML सेक्टर जैसे कि रोबोट्स वगैरह हुए, तो जो ह्यूमंस है वो मुझे लगता है मशीन्स और रोबोट से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। एग्जैक्टली, क्योंकि एट द एंड उन रोबोट्स और मशीन्स को ह्यूमंस ने ही तो बनाया, तो इसलिए तो आई थिंक दैट और एक डिसएडवांटेज हो सकता है ये रोबोटिक्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वगैरह, कि ये पीपल को रिप्लेस कर देंगे। एग्जैक्टली, दिस विल रिप्लेस ह्यूमंस एंड दिस विल क्रिएट मच मोर अनएम्प्लॉयमेंट, so this can also happen, I think. So Naval Ravikant said a really good thing regarding AI and ML, that he said that these robots should be used to perform the tasks which are not for humans. जैसे कि बर्तन धोना, गाड़ी धोना, ह्यूमंस इन टास्क पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं अपना, गाड़ी धोना, घर साफ करना, क्योंकि ह्यूमंस के पास थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वो कुछ और भी सोच सकते हैं बड़ा, तो उनको उस बड़े चीज की तरफ काम करना चाहिए, ना कि उनका टाइम इन छोटी चीजों में वेस्ट करना चाहिए। तो नवल रविकांत के अकॉर्डिंग रोबोट्स वगैरह को ये सब टास्क देने चाहिए, और ह्यूमंस को कुछ बड़े चीज पर काम करना चाहिए, ना कि उनका टाइम इन चीजों पर वेस्ट करना चाहिए। सो डू यू थिंक लाइक जो भी एआई रोबोटिक्स जो सारी चीजें हैं उनको लिमिटेड में ही रखना चाहिए, लाइक उनको लिमिट्स में ही, जैसे कि ऑटोमेटिक कार, they will create a great trouble for humans, बिकॉज ऑटोमेटिक कार चल रही है, सो ऑटो पायलट मोड पे एआई अगर चला रहा है, सो इट माइट बी एक्सीडेंटल थिंग, कुछ तो हो सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज इलेक्ट्रॉनिक, एग्जैक्टली। तो बट स्टिल, तो जो भी एआई चल रहा है, जैसे कि गूगल सीरी ये जो चल रहा है, उनको लिमिटेड में ही रखना चाहिए, रोबोटिक्स वो सारी चीजें, उनको अगर हम हर एक चीज में अगर यूज करेंगे या फिर हम उसे कहेंगे उसका ज्यादा इस्तेमाल किया गया, इट कैन हार्म ह्यूमन बींग्स, राइट? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रोडक्टिविटी? लाइक प्रोडक्टिविटी जो है वो हर एक इंसान में डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी चीज होती है, तो आपके हिसाब से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, और क्या स्ट्रेटजीज होंगी प्रोडक्टिव बने रहने के लिए? प्रोडक्टिविटी हर एक जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, irrespective of his profession. Like if he is a student or if he is a working professional or if he is a businessman, प्रोडक्टिविटी सब में चाहिए, सब लोगों को प्रोडक्टिविटी की जरूरत रहती है। So the best definition of being productive is that doing the task which is going to benefit you. I think this should be termed as productive. जैसे कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, वो प्रोडक्टिव टास्क है, क्योंकि आप उस बुक से कुछ सीख रहे हैं जो आपको फ्यूचर में यूज हो जाएगा। अगर आप घर साफ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक प्रोडक्टिव टास्क है। आप घर साफ कर रहे हैं, घर आपका क्लीन रहेगा। पर हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं रील्स, शॉर्ट्स और पोस्ट देखने में, तो ये प्रोडक्टिव टास्क नहीं, क्योंकि आपको ये बेनिफिट नहीं करने वाला। क्योंकि आप सिर्फ सोफा पर लेट के रील स्क्रॉल करते जाओगे, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिलेगी, पर उस क्रिएटर का तो फायदा ही है, उसको लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स वगैरह सब मिल रहा है। तो यस, सो प्रोडक्टिविटी तो सब में होनी चाहिए। और प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं, मतलब मुझे भी यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं और डीएम्स वगैरह भी आते हैं कि प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो पॉइंट्स दिमाग में रखता हूँ, मैं जो टास्क करता हूँ प्रोडक्टिविटी के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। So the very first thing I do is whenever I get up in the morning, I create my to-do list. Like what I need to do in the day. Time blocking. Like the morning task, the very first thing I do is get up and do exercise. And the next thing I do is that in the morning time, I upload a kind of a tweet or a LinkedIn post, because that makes my mind much more fresher. एंड आफ्टर दैट अभी यूट्यूब पर तो वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ मैं एग्जाम्स के लिए, तो अभी सो माय एग्जाम्स आर
coming near, so that is why I can't upload YouTube videos. So Okay. to-do list makes your work much more better. Mhm. Like you have to just tick and cross the task which you have done. So I think Mhm. that productivity, like you, yes, you can do this to-do list task, and you can use focus Mhm. timers and app timers, Mhm. because these timers will help you to totally focus on your task rather than spending time on these applications, social Okay. media applications. Mhm. So I think that yes, focus timers and app timers, to do list and alarms वगैरह, ये प्रोडक्टिविटी आप अगर यूज करेंगे तो प्रोडक्टिव हो जाएंगे. Mhm. पर आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए. ऐसे नहीं कि अलार्म लगाए सुबह 6 बजे का और स्नूज करके सो गए, 8 बजे उठ गए. So this is not gonna work. This is really not gonna work. So we almost covered so many things in this podcast, like so many Yes. technological things. We got to know some basic things, not like deep में हम उतना नहीं जान पाए, but still we'll definitely gonna do second part of this podcast in some day, because you are Yes. in 12th standard, so I can understand that you have so many less time. So thank you for being on to this podcast, sharing your time, sharing your knowledge, and sharing your thoughts and views. Thank you so much. Yes.